Hello, everyone. Welcome back to another episode, third episode of A2H podcasts. Um, with me is the one and only Mr. Himalaya Singh. Hello everyone. Welcome back. पीछे Um, मेरी बाइक भी आ so रही है. Let me मुझे तो just. दिख नहीं रही बाइक. वो बाद में दिखेगी स्ट्रीम पे दिखेगी. Okay, okay. I'll take your words for that. Anyway, what is on the agenda today? I'll let you introduce the topics. Okay, we've got four topics. One is quite a heavy one, and we're only going to be talking about our opinions on whatever is happening in the world. So the first topic being Israel and Palestine. There is another topic that is close to my heart that is leaving, well, modern slavery, working every day, 9 to 5 jobs and stuff. The other one is sophisticated scams in the market these days. And the fourth one, if we got there, Turkish delight. So Turkish moving delight. on. Aviz, how do you want to Okay. start the Israel-Palestine Uh, conflict? uh, I think there is no good way to start the topic. Um, So recently, uh, there was obviously um, there were atrocities committed by Hamas against Israeli civilians, which I think all of us can agree that that's not the right way. Um, it is sad. Um, Yeah. Here comes the but. I think um, um, if you lock uh, a population behind fences um, for this long, there will be eventually some retaliation. तो उसमें भी civilians को नहीं, like civilians shouldn't be the ones, like they should have attacked army establishments if anything. It shouldn't have been civilians, but unfortunately it was. We've seen the scenes. Um, there was a concert, like people were kidnapped, जो कुछ भी हुआ. Um, yeah, that's my initial take on it. Bro, these headphones are annoying. Yogo. So I think would you I was coming to that कि what is someone supposed to do when your land and your people um, are taken hostage, not taken hostage. वो हमास एंड पैलेस्टाइन का क्या उन्होंने इससे जमीन हथिया ली ना इजराइल ने. What now? You said like there is a but and उसमें how do you justify कि उसके बाद अगर चलो कुछ भी एट्रोसिटीज है कुछ भी है पर वो उसने ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि मतलब किलिंग ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस जो कि वहां दोनों साइड से हो रही है. पर व्हाट डू यू डू. मैं ये सोच भी रहा था कि इज इट जस्टिफाइड जो हमास ने किया है. बट बट इज इट जस्टिफाइड. मुझे तो मतलब आई एक तरह से मैं ऐसे सोचूं कि मैं जट बुद्धि हूं कि मेरा कोई अगर मान लो मेरा पर्सनली कोई ऐसे जमीन हथियाता है या मतलब कोई ऐसे कब्जा करता है या ज्यादती करता है तो मैं क्या आगे से करूंगा. इज देयर अ राइट वे टू गो अबाउट इट. बट व्हाट इज द राइट वे. मतलब पीपल. यही, आई थिंक यही पैलेस्टीनियंस का आर्गुमेंट है कि हम कब से we've been trying the political solution to get a two-state solution done and whatnot, but it hasn't worked, right? Palestine में दो political parties हैं. Well, there were more. Like right now, there are two: Fatah and
हमास। और फतह इज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि हमने पीसफुल सॉल्यूशंस लाइक नेगोशिएशन, दे recognize the state of Israel, right? और वो कहते हैं कि हम पीसफुली वी वांट रीच अ टू स्टेट सोल्यूशन। Hamas on the other hand claims कि बहुत कर लिया ट्राई, Fatah has been doing that since the 90s without any success, or maybe since the 70s, I don't know, without any success, and Israel keeps क्या कहते हैं settling onto the occupied territories. So it's clearly not working. So more radical steps need to be taken. They don't recognize the state of Israel, Hamas, or they believe that to get to get that state of Palestine, they need to be violent. Non-violence isn't working. So, in my understanding, Hamas was elected हाँ, by Palestinian people, in the Gaza and Strip, yeah. तो उनका कोई ऐसा भी are there two different Hamases or is it just one Hamas? एक ही है, एक Uh, हमास है और दूसरी फतह है। फतह इज नॉन वायलेंट और फतह इज वो इलेक्शंस हमास जब जीती थी तो फतह ने कहा था कि हम नहीं देंगे आपको पावर क्योंकि यू आर टू रेडिकल, hmm. बट दे वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड क्योंकि अब जो यंग पैलेस्टीनियंस हैं उनका भी अब ये ओपिनियन है लाइक ऑब्वियसली आप पर अगर बॉम्ब्स रेन हो रहे हैं एवरी अदर डे यू बिकम मोर रेडिकलाइज, तो दे वोटेड फॉर द रेडिकल पार्टी के नो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन इजंट वर्किंग, तो उन्होंने हमास को वोट दिया था। बट ये तो काम खराब कर दिया ना इन्होंने। मतलब हमास ने जो ऐसे जो अटैक कर रहा है, ऑब्वियसली कॉन्सर्ट पर वो लोग किडनैप कर लिए एंड देन परेडिंग वुमेन अराउंड, दैट इज रियली रियली बैड। किल्ड इनोसेंट सिविलियन एंड चिल्ड्रन। 5,000 मिसाइल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैंने तो सुना ही है कहीं से, मेरे को ऐसे फैक्ट्स तो नहीं पता कितनी मिसाइल्स थी या कितनी नहीं थी। एंड देन जैसे आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में करना चाहिए, बट देन इसराइल में तो हर कोई आर्मी है below the age of 18, they have to हाँ, serve in the army. बट एक्टिव पर्सन है लाइक वो उन लोगों पर कर लो आप लाइक, आई एम नॉट एडवोकेटिंग anything here, it's just like theory, right? Philosophy, Hmm. philosophically speaking, um, Hmm. अब मैं नहीं बोल रहा कि जाके इसराइल को मारो। I don't want to come across. Yeah, that's why I said this topic is too controversial. Hmm. बस कंट्री वो एक्स नहीं, वाई वो ले तो है। लेते हैं, कंट्री एक्स वो वाई तो है, ले बट लेते हैं, नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि वी क्योंकि आर नॉट, मैनेजर, वी आर नॉट। आई डोंट वांट टू हाँ। गेट कैंसल्ड बिफोर आई इवन टेक ऑफ। तो तो अगर एक फ्रिंज एलिमेंट है लाइक मिलिटेंट ग्रुप है और एक कंट्री ने उनकी कंट्री को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो आई फील लाइक कि अगर आपने अटैक करना भी है किसी पे तो आप उनकी उनकी आर्मी पे करो, उनकी आर्म फोर्सेस पे करो। पर्सनल एक्टिव जो ड्यूटी पे हो उनको आई थिंक दैट फेयर गेम, बट लाइक नॉट सिविलियन। वही लोग जब ड्यूटी पे नहीं है दे सिविलियंस, राइट? तो देन दे बिकम अनफेयर गेम। हम्म। ओके। मुझे तो ऐसा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इज देयर एनी अदर वे दैट कुड हैव डन आई थिंक अटैकिंग। देर इज। अच्छा, अटैकिंग में आई डोंट नो मैन, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। लाइक अगर मेरे मेरा एक पैलेस्टीनियन फ्रेंड है उससे पूछोगे तो वो कहता है लाइक मैं मानता हूँ कि हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मानना है कि नहीं वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। और वो रेडिकल अप्रोच उनको इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। वो कौन सी विंडो होती है, ऑरवेल विंडो, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, आई थिंक इट्स ऑरवेल विंडो। वो कितनी शिफ्ट करते हो दैट्स अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। अब हम उस जगह में जी नहीं रहे, लाइक वी डोंट हैव टू लिव विद दैट, तो हमें वो रेडिकलिज्म ज्यादा लगता है।
um, a lot of Israelis don't support all this violence against Palestinians जो वहाँ रहते हैं. हम्म हम्म तो हम्म लाइक हम यहाँ बैठे जज नहीं कर सकते. सिमिलरली वी कांट जज के Israelis के लिए how difficult it might be. Although I don't उनको मैं इतना I उनके लिए एम्पैथी मेरे मेरे दिल में कम है, क्योंकि हम्म if you're going and building your houses in occupied land, हम्म you should expect कि शायद कभी the guy knocks on your door कि ये मेरी जगह थी. तो हम्म I have less empathy for them. लेकिन after recent events obviously empathy अब थोड़ी ज़्यादा है than my usual levels, क्योंकि हम्म मतलब they've lost their loved ones and whatnot. हम्म। तो वो एक मेरे को अभी अभी दिमाग में ऐसे पॉइंट आया कि अभी हम हमास हमास कर रहे हैं कि टेररिस्ट है और innocent civilians को मार दिया, but this is exactly same thing that Russia had done with Ukraine, but because हम्म, Russia is very very strong, उसका इतना ज्यादा टेररिस्ट टेररिस्ट नहीं बोला जितना हमास को बोलना शुरू कर दिया. ओ बट लाइक सॉरी, हमास का तो ये भी था ना, वो कॉन्सर्ट में जाकर वो लोगों को किडनैप कर लिया एंड परेडिंग वुमेन अराउंड नेकेड, और सॉरी, दैट्स नो नो it's नो actually the other way around. I would say क्योंकि Palestine is being occupied, right? तो वो यूक्रेन की पोजीशन में, और यूक्रेन के लिए लाइक सब everyone was there supporting them, or even when they were hitting back, right? But um, the same can't be said for Palestinians. Like बिल्कुल भी I feel like there's no support for them. Um, like there I've been reading quite harsh comments, like from like right wing Indians. I'm used to it, right? कि ये मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, इनको मार दो. But even from on Western groups, ke, like these guys are rats, Muslims are rats, they need to be eliminated. Why are we even keeping them in our Western civilization? Stuff like that. So, it's surprising. It's surprising that among us in London, in England, in Germany, there are people जो ऐसे सोचते हैं. और फिर मैं सोचता हूँ कि me being a Muslim, like how, like, do they hold that opinion when they see me, and or like are they just like a 1% small 0.5%? Because they're also loud. They tend to be loud even though they're the minority. ओके. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी जो वो यू जस्ट द पॉइंट यू जस्ट रेज्ड, ऐसे बहुत सारी बातें दिमाग में है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम बिकॉज़ कितना टाइम हो पॉडकास्ट गया गोना बी बाय द वे, लाइक? about 10 minutes, I think. ओके. Um, तो हाँ, बस ये ऐसे दिमाग में आ रहा था कि there are two things, two different things. Um, Palestine equals to Ukraine with no support, and Israel is equals to That's Russia but my with support. opinion. That's my Hmm. opinion. लेकिन a lot of people will disagree as well, क्योंकि यूक्रेन ने कभी, या फिर यूक्रेन के किसी रेडिकल विंग्स ने सिविलियंस पर अटैक नहीं किया था. Exactly. मैं उस पे आने वाला था. But the, these are complicated issues. I just wanted to express that we, like normal people, also talk about these things, and I hold empathy for both Israelis at this point, and Palestine. और ऊपर से, Palestinians for the rest of the year. yeah, yeah, and जो पैलेस्टीन जो गाजा स्ट्रिप में है. लेकिन ब्रो uh, इसमें ना मुझे मुझे लाइक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव विद दिस इज कि देयर इज नॉट इक्वालिटी इन द कवरेज. तो इसराइल पे एक अटैक हुआ and it becomes headline news for 4 or 5 days. हम्म The same thing is happening to Palestinians all year round, and it और अभी never भी तो even. हो रहा है.
हाँ अभी अभी भी भी तो हो हो रहा रहा है, है, लेकिन चलो जैसे अभी वो मान भी गाजा लिया। हाँ। गाजा स्ट्रिप में वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह सब बंद कर रखा है ना। और हाँ। लाइक यू कैन सी वन ऑड वीडियो एवरी नाउ एंड देन वेयर कोई इसराइली ऐसे पानी खुला छोड़कर दिखा रहा है कि ये देखो हमारे पास तो पानी है हाँ। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी है, टीवी चल रहा है पीछे। एंड देन यू सी these guys के I can't wash my hair because I have no water on the Palestinian side on the Gaza Strip. And then there is a boy, I saw this video of this boy rapping. um, हाँ, इतना या क्या बढ़िया आई उसने सो दैट। rap करा था, and like he's such a हाँ। in such a young age. हाँ। Very talented people in Gaza Strip as well. या But yeah, it's इट्स sad. रियली सैड। Hmm. But anyway, do you want to keep talking आई about this? थिंक आई थिंक अल्टीमेटली लाइक जस्ट टू कट इट शॉर्ट, वैसे तो इस पे 2 घंटे की बात हो सकती है। Hmm. But ultimately, to cut it short, in war there are no winners. Um, Hmm. or especially civilians होते हैं. Like, I can keep banging on about injustice, injustice. It's there. It's. I'm not gonna change it. मैंने Twitter पे भी बहुत arguments किए the last 5 6 days. कि तब क्यों नहीं बोलते जब Palestine पर like when there are daily attacks happening and whatnot. But like, Hmm. I'm not gonna change anyone's perspective. And Hmm. like, I think closing remarks on this topic from me would be in war there are never winners. Um, I believe there needs to be a solution, political solution. एक जिसको two-state solution बोला जाता है in layman terms. And I feel like that's the only way this is ever gonna stop. See, I don't know how it's gonna stop because there are essentially two countries, right? Israel and Palestine. अब वो इतने सालों में, पिछले 1000 सालों में या 100 सालों में, जो इसराइल छोटा सा था वो पूरा ही इसराइल बन गया है। और फिर थोड़े से डॉट्स दिखते हैं जो कि पैलेस्टीन है। Hmm. um, That's what I mean. Like two-state solution is मतलब क्योंकि Palestine isn't officially recognized by Israel and वो hmm, पैलेस्टाइन में अपनी सेटलमेंट्स बनाते रहते हैं। आई okay. थिंक देयर नीड टू बी क्लियर डिफाइंड बॉर्डर्स के यहाँ तक इसराइल है और इसके बाद पैलेस्टाइन है, एंड यू डोंट गो इन देयर बिकॉज दैट्स सॉवरेन टेरिटरी, दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन। आई डोंट थिंक इट विल हैपन, बट in my eyes I think that's the only solution. But shall we move on? And the other Uh, thing I wanted yeah. to say is that world these days is too polarized, Yeah. and whatever you say, you're not gonna change anyone's opinion. Even we can fight over these things, and you're not gonna change my opinion, and I'm gonna change. I'm not gonna be able to change your opinion. ब्रो यहाँ Um, पर लिखा है नंबर ऑफ आउटबाउंड कनेक्शंस 10, नंबर ऑफ आउटबाउंड ऑडियो स्ट्रीम्स 10। या मेरे पास तो दो ही लिखा है। रियली? हाँ, डबल चेक। डबल चेक, वो सामने ही है। अच्छा, एनीवेज, किसी ने अगर लाइक इवन इफ समवनस हैकिंग द स्ट्रीम आई थिंक दैट्स कॉम्प्लीमेंट टू देम। And the password doesn't really help. हाँ। ओके, मेरे पास दो ही क्यों लिखा आ रहा है? ओके, डू यू वांट टू मूव ऑन और? आई गेस हाँ, क्या ही कर लेंगे लोग हमारी फुटेज का। Okay. The next topic on my list was leaving your 9 to 5 job and follow your दैट्स passion. मोर ऑफ अ पर्सनल टॉपिक। Yeah. So I I don't know. So I work as a software engineer, and मेरे को अपना काम बहुत बढ़िया लगता है. But what I don't like is sometimes मुझे वो अच्छा नहीं लगता और मुझे फिर भी वो करना पड़ता है. Because like we work on different projects. एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होता है. ऐसे कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं है. And you know, you do like some
projects, and especially in between that project, you like some bits and you don't like the other bits, but you have to do all of them. um, तो मैं तो बस यही सोच रहा था कि इज दिस मॉडर्न स्लेवरी के मतलब वो ऐसे पैसे तो डाल देते हैं अकाउंट में हर महीने, पर फिर लाइक हर रोज ऐसे वही हर रोज यही सोचा जाता है यार क्या करने जा रहा हूँ मैं और क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद ही का काम करता हूँ, कुछ ना कुछ पैसे कम भी कमाऊँ ज्यादा कमाऊँ जो भी करूँ वो अपना ही होगा ना। तो आई हाँ, आई इसमें वो बात आ जाती है ना पैशन की, मतलब आई थिंक आई कुड लिंक इट टू कि अगर रोनाल्डो के बाप ने उसे बोल दिया होता कि तू डॉक्टर बनेगा, तो हम्म he would have been just an average doctor, right? हम्म Um, just another one among what, 100,000, a million doctors in the world. He would have been one हम्म of them. Or because he followed his passion, he is the best, the number हम्म one. नहीं तो arguably अगर मेसी नंबर वन है तो नंबर टू, नंबर टू, राइट? नंबर वन। तो लाइक ही इज द मतलब टॉप 10 में भी आ जाओ आप किसी चीज में, दैट्स एन अकम्पलिशमेंट, राइट? तो टॉप 10 वो चाहे फिर डॉक्टर हो, अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, फुटबॉलर हो, जो भी, राइट? आई थिंक it comes to that, like following your passion is so important, and I think it's like undervalued in our society कि कितना जरूरी होता है कि हम लोगों को अपना पैशन फॉलो करने दें। थोड़ा सा ना, I feel like you can take the Indian out of India, but you can't take the Indian out of an Indian. In the इंडिया sense, आउट ऑफ एन इंडियन ईयर। in the sense that um, वो सोच इंडिया में यू नीड दैट बिकॉज देयर आर्ट इज मेनी ऑप्शंस, ठीक है? आपको इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये इन्हीं में से कुछ बनना है, otherwise your life is going to be shit unless you go into being a businessman or whatever, that's a different story. लेकिन करियर्स यही तीन चार होते हैं, क्योंकि कुक की वहां पर कोई इतनी वैल्यू नहीं है, म्यूजिशियन की उतनी वैल्यू नहीं है अनलेस अब बॉलीवुड एंड, बट लाइक वो हाँ व्हाट आर काफी द चांसेस? चेंज हो रहा है, बट आई हाँ, आई सी व्हाट यू आर सेइंग, बहुत कुछ चेंज हो गया है और हाँ, बड़े हाँ, सारे छोटे जिसको हम कहेंगे छोटी जॉब्स है उसमें भी काफी सही लोग कर हाँ। रहे हैं, अब तरक्की कर रहे हैं, एंटरटेनर्स पैसा लाइक भी इवन बढ़िया हो फॉर रहा है। यूट्यूब एंड स्टफ, एंटरटेनर्स हम्म काफी पॉप अप हुए हैं, बट लाइक वो जो 10-20 साल पुरानी सोच है, आई थिंक वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ दैट। तो हम्म हमें इंजीनियर बनना था, हमें डॉक्टर्स बनना था बिकॉज ऑफ कि वरना हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। whereas if you look at यूरोपियंस, तो वो जो हमारे साथ कॉम्पसाई कर रहे थे मोस्टली, they were passionate and they were in it for because they love doing it, तो उनको आई थिंक वो उतना फील नहीं होता। मे बी दे डोंट फील एज मच, करते होंगे बिकॉज हु लाइक्स वर्किंग राइट 9 to 5, हम्म लेकिन आई थिंक उनका पैशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज दे वांटेड टू डू दैट, वरना वो जूलॉजी में भी जा सकते थे, लाइक देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग देम फ्रॉम गोइंग इनटू जूलॉजी। तो हम्म और ज्योग्राफी वट एवर, लाइक ऑल द बुलशिट सब्जेक्ट्स जिनका मजाक उड़ाते थे। um, but like it's more acceptable in European society to do that. So following passion I think जरूरी होता है। I think go get him tiger, but but it's it's easier said than done क्योंकि अब हमने ना अपने yeah careers we built them around this already, तो yeah like yeah. you are a slave at this time, And at then this moment. you also have to realize that it's not easy to even find your passion. What is your हाँ, passion? um, वो भी नहीं सिखाया जाता हमें। हाँ, वो मुझे एक बारी को ख्याल आया कि जॉब छोड़ दूं और छोड़कर ऐसे 2-4 महीने ना घर पर बैठूं, जिससे मुझे कुछ मेरा दिमाग खुले, कुछ पता लगे कि व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई लाइक डूइंग। हाँ, पर वो ऐसी गंदी आदत पड़ गई है ना
कि हर महीने पैसे आने चाहिए अकाउंट में, वो वो उस वजह से मैं बस छोड़ नहीं रहा। और अभी मेरी कुछ थोड़ी सी जॉब भी ठीक ठाक है, तो हम्म। और कंपनी भी अच्छी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि it's going to be the worst mistake of my life if I do that. But then it might be that it just seems like it. It might not actually be that bad. हम्म। So this is what is going through my mind at the moment. हाँ, आई थिंक इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। वी हाँ, डोंट नो और अनटिल किसी वी। को भी पूछो यार, किसी को भी पूछो, ऐसे ऐसे एडवाइस लेता है ना बंदा, कभी किसी अपने सियानों से एडवाइस लेता है, तो कोई भी सियाना आपको ये नहीं बोलेगा कि यहाँ यार छोड़ दो। डू योर थिंग, छोड़ दे, हाँ। फॉलो योर पैशन। वो कहेंगे यार तेरे को पैशन फॉलो करना है तो साइड बाय साइड कर। मतलब और नोबडी इन वो देयर राइट माइंड क्योंकि वुड इज गोना एडवाइस क्योंकि लाइक दे क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर देमसेल्व्स। वो दैट। लाइक 10 साल बाद आप कुछ ना उखाड़ पाए तो आप उनको फिर दोषी ठहराओगे कि आपने मुझे बोला था। नहीं ऐसा तो क्यों होगा? वो तो यार वो लोग करते हैं ना जो पीपल हु आर लुकिंग फॉर ऐसे किसी पे एक्सक्यूज डाल दें, कि किसी पे ब्लेम डाल दें कि बट आई थिंक व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन इट चेंजेस यू। जब आप 10 साल बाद बिना पैसे के बिना सक्सेस के सड़कों पे अगर घूम रहे हो तो आप ढूंढते हो कभी कभी वो आउटलेट कि ये इसने मुझे बोला था, इस बंदे ने बोला था। यू बिकम पैटी। तो अभी भी तो 10 साल बाद अगर मान लो कि मैं जॉब में ही रहा और मेरे को, मैं सबको बोलूंगा 10 साल बाद बना अनहैप्पी, या फिर अच्छा ना इंजीनियर बन पाया, तो आई बी लाइक कि कुछ उखाड़ा नहीं ना। जॉब पे जाकर क्या होता है कि वो तो पैसे तो दे देते हैं अभी। अच्छा बना तो बात है ना, कि क्या इसे किसी ने ब्रिज बना दिया, और किसी ने वो इंजीनियरिंग मार्वल्स है कितने सारे, किसी का नाम उसके साथ जुड़ गया कि अरे इसने वो बनाया था, तो वो समझ आता है। वो मैंने लाइफ में कुछ अचीव करा, बेशक जॉब करके करा, बट अभी तो ऐसी वो, मतलब जितनी की भी एवरेज सैलरी होती है उतनी डाल देते हैं मेरे अकाउंट में। और उतनी अगर मुझे 10 साल में मिलती रही मेरे 10 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं ना उखाड़ा। तो हम्म। तभी तो मैं लोगों को कोसूंगा कि इसने मेरा उस टाइम साथ नहीं दिया था, इसने बोला था कि करता रह जाओ, यही ठीक है। वैसे ये एक थ्योरी है जो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आई गेस आई वाज लिसनिंग टू दिस थ्योरी कि क्यों लाइक मॉडर्न स्लेवरी के बारे में कि व्हाट व्हाई आर वी इन दिस सिचुएशन के हम क्यों 5 दिन काम करते हैं। एंड द रीजन इज कि पहले हम 7 दिन किया करते थे, वो कोल माइनर्स हम्म, 7 डेज वर्क काम किया करते थे। एंड उनके दे स्टॉप बीइंग एफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि यार ये क्या है, हम नहीं करेंगे ये काम। तो फिर 2 दिन बीच में ब्रेक के दे दिए बिकॉज दैट दे फाउंड टू बी द ऑप्टिमल एरिया जहां पर लोग काम करने आते भी रहेंगे जब तक उनको पैसे मिलते रहें, और इतना टाइम भी नहीं उनको दिया जाएगा कि वो अपना पैशन ढूंढ पाए। वो दे कैन फिगर आउट के हम हम स्लेव्स हैं इस वक्त, राइट? तो इट्स द परफेक्ट बैलेंस। दैट्स व्हाट लाइक पीपल, अब पता नहीं कंस्पिरेसी थ्योरी है या क्या है, बट इट साउंड्स हम्म। प्लॉजिबल कि वो एग्जैक्टली exactly 2 दिन का ब्रेक दिया है कि इसमें आप रिलैक्स है, दीज आर योर 2 डेज, और बाकी 5 दिन। हाँ, थ्योरी नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। ऐसे नॉट, आई एम नॉट श्योर कि कोल माइनर्स के साथ ये हुआ था, बट लाइक I've also read this somewhere, and also that some workplaces are also um, thinking about having a 3-day weekend and 4-day work week हाँ हाँ to increase productivity and efficiency. हाँ, प्रोडक्ट, um, एंड आई थिंक इट्स बीन पॉजिटिव, द प्रोडक्टिविटी डज इंक्रीज एज वेल, दे सीन। mhm. लेकिन फिर भी आप उस स्लेव के सिस्टम, उसमें स्लेव, उस सिस्टम में स्लेव भाई
Are you still a slave? क्योंकि 4 days are still spent working. But नहीं, I think ठीक है, आपको पैसे भी तो मिलते हैं. So I don't know, bro. This is a very um, uh, touchy maybe subject. I'm entangled in it personally. That's why it's hard to understand what's going on. Maybe I should just give it a go and like just just for a year, Take a leap of faith. yeah, take a leap of faith and just do it anyway. हो जाता है कभी कभी इसमें क्या है. वो पिक्चर्स जो हमने टीवीएफ की देखी थी उसमें वो था ना कि फ्लिप अ कॉइन. मैं बियर हूँ. मैं बियर हूँ. वो भी बट फ्लिप अ कॉइन. वो उसी का था आई थिंक हम्म. पिक्चर्स का. Hmm. डू यू Now, रिमेम्बर? pictures के था. Flip a coin and you, while the coin is spinning in the air, जब तू you फ्लिप you करता है तब yeah, तब क्या बोलता है माइंड. दैट्स दिमाग. व्हाट काउंट्स. Hmm. Okay. बट इट्स इजियर सेड देन डन एज वेल. It is, बिकॉज but again, it is easy said. I don't need to flip a coin to drop my resignation. Uh, but I think I should, but again, like these are all the things um, that gets you. But again, और एक चीज ये भी होती है कि are you still living in your comfort zone, कि वो पैसे डाल देते हैं अकाउंट में, तो is this not your comfort zone now, कि पैसे आ रहे हैं बढ़िया, और हाँ. अपने को और कोई चिंता की जरूरत नहीं है, काम पर जाओ पैसे कमाओ. हम्म. आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड अ जॉब. अगर तो अपने ही सिटी में होता इट वुड हैव बीन कंप्लीटली ओके. हम्म. आई थिंक सो. लाइक आई थिंक द प्रॉब्लम इज having a commute that takes away from your weekends and stuff. हम्म. वो तो है ही. And anyway, bro, I don't think we are making it any entertaining. Um, do we want to move on to the next subject? हाँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं है कि व्हाट स्कैम. Okay, so bro, I came across this video. किसी ने, मैं ट्विटर पर ही देखा, विच इज कॉल्ड एक्स नाउडेज. हाँ. ट्विटर पर किसी ने बोला कि why are people even um, stressing about investing and trading, where you can make a bot, and this particular bot helps you make money. You can make 300 pounds or dollars a day. And हम्म. even though when someone says $300 a day, $900 a day is a scam, it's instantly easy money is an instant red flag, right? कि जो कुछ हम्म. करना ना पड़े ना और ऐसे अकाउंट में पैसे बनते जाए, तो that's an instant red flag. So I checked out this video. It's on YouTube. So I didn't have the, it was like 18 minutes long video, and I didn't have the patience to go through it all. But what the guy was telling in that video, like what I understood and like cutting it short, that he's written a script in a language that is used for crypto. I can't remember that the name of the language. And वो उसका पेस्ट बिन पर जहाँ पर वो कोड ले जाकर पेस्ट नहीं करते, वहां पेस्ट बिन पर उसका कोड था. उसने बोला यहाँ से इस एक्सटेंशन पर गूगल क्रोम पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करो, उसमें मेरा ये कोड डालो, एंड देन वहां पर एक एथेरियम कॉइन डालो, एंड सी इट मेकिंग मनी. एंड तो मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं वो क्या क्या करने को कहता है, बट दिस इज द समरी ऑफ इट दैट आई रेड एंड आई गॉट एक्साइटेड. आई वाज लाइक अच्छा ये भी हो सकता है. मतलब मुझे पता था कि ऐसे स्कैम होते हैं, एंड आई वाज स्टिल लाइक, आई वाज लाइक ओके, लाइक उसके 200 300 ऐसे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा हम्म. कमेंट्स में जाकर देखता हूँ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग कमेंट्स कि अगर स्कैम है और लाइव वीडियो है और यूट्यूब पर है, तो
वहां पर लोग भी तो होंगे ना, ऐसे फेक यूजर्स ही थोड़ी होंगे सारे, 200 कोई फेक यूजर कैसे होंगे? तो मैंने फाइवर सोचा पे कि मिलते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था। ओके, तो वहां पर ऐसे सबने पॉजिटिव रिव्यू दिया, ओ आई जस्ट मेड 500 नाउ। और किसी ने ऐसे कहा कि आई एम ऑन माय डमी अकाउंट बट आई स्टिल मेड 300 पाउंड्स अ डे। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा, "अरे, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये तो।" और ऐसे होता है ना, व्हेन इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स नॉट ट्रू। हम्म। और मैंने और मैं देखता रहा कि मैंने और भी सारे कमेंट्स पढ़े, सारे तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही, जितना पेशेंस था। अम, फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई करता हूँ। हाँ। but when I looked at the code, आई हैड टू, मुझे ऐसे वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो सिंटेक्स अलग होगा, पर बेसिक सबके फंडामेंटल सबके सेम ही होते हैं। तो आई डोंट, हाउएवर आई डोंट रिमेम्बर the name of the language, but when I looked into it, वहां पर क्या था कि when you put in your um, Ethereum coin into the extension, you're connecting your wallet, Ethereum wallet, to the extension. That's how you're putting your one Ethereum coin to that script. And once you do that, your Ethereum coin gets redirected to some of the other wallet. और वो wallet, वो कोड भी ऐसे हार्ड कोडेड नहीं था वॉलेट में। इट टुक मी अ व्हाइल टू लाइक फिगर आउट वेयर दिस इज एक्चुअली गोइंग। और वो किसी स्कैमर के अकाउंट में जा रहा था। और वो जो इथेरियम वॉलेट का एड्रेस था उसका, उस पे मैं देख रहा हूँ, एंड इट्स क्लियरली अ स्कैम। और मैं देख रहा हूँ हर 5 मिनट में ऐसे एक एक दो दो इथेरियम उसके अकाउंट में आ रहे थे। आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बहुत अम, सही है। ऐसे मतलब अगर आपके एथिक्स बीच में ना आते हो, तो आप भी ऐसा कुछ कर कर ये ऐसे ही पैसे कमाता रहे बंदा। वो कहाँ का था बंदा? लाइक वेयर वो वाज ही ऐसे बेस्ड? पता नहीं लगता। वो तो क्योंकि इथेरियम, दैट्स द पॉइंट ऑफ ब्लॉकचेन, राइट? नहीं, वो तो यूट्यूबर कहाँ का था? यूट्यूबर का भी मुझे नहीं पता कहाँ का था। वो उस चैनल पर एक ही वीडियो थी। हाउएवर आई सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि उसने चैनल था W3 ट्यूटोरियल्स, शायद ऐसे करके चैनल था। तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया, थिंकिंग कि और भी ट्यूटोरियल्स होंगे कुछ कुछ किसी किसी चीज के, W3 के। W3 ट्यूटोरियल्स तो एक जेन्युइन पेज है ब्रो। ओके, आई वो थिंक एक, आई थिंक वो बहुत सारे चैनल्स के सिमिलर नाम हो सकते हैं ना, ऐसा कोई चैनल नेम रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो या फिर उसका कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट होगा, कैपिटल एस या कैपिटल डब्ल्यू होगा, ऐसा कुछ होगा। तो उसमें एक ही वीडियो थी, डब्ल्यू जब मैंने थ्री बाद में स्कूल्स देखा। इज जेन्युइन। Oh yeah, W3 tutorial is not a general. Web3 tutorials maybe. I'm not 100% sure. ऐसे ही कुछ था। ओके। तो तो मतलब आई थॉट कि यार, ये अगर कोई अनजान ही बंदा हो, और मतलब क्योंकि आई एम अ स्केप्टिकल पर्सन, मेरे को कुछ भी अच्छी चीज भी दिखती है तो आई फाइंड आउट नेगेटिव्स इन इट। तो मैं, अगर मेरे दिमाग में ये आ गया कि ये तो बढ़िया बढ़िया चीज है, तो और भी कितने लोगों के, और एविडेंटली क्योंकि उसके वॉलेट में वो उसके एड्रेस में आए जा रहे थे ना, आई। इथेरियम कॉइन्स हाँ, आए बट जा वो रहे थे। सारे वो है ना, जो विक्टिम्स हैं। हाँ, विक्टिम्स सारे विक्टिम्स वो लाइक हैं। विक्टिम्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। या मे बी, आई डोंट नो कैश। आई थिंक यहाँ एथिक्स का नहीं है, लाइक सीइंग एज यू लिव इन ग्रेट ब्रिटेन इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू डू एनीवे, क्योंकि यहाँ पर अभी एक अमेरिकन भी तो अरेस्ट हुआ है, जेल गया है, क्या लाइफ सेंटेंसेस मिली हैं उसे बहुत सारी। ओके, बट इफ इट्स उसने भी नॉट ऐसी ट्रू। बिटकॉइन का वो जो किया था उसने, वो मुझे इतना इनजेन्युइन नहीं लगा। वो जापानीज वॉलेट्स आई थिंक यूज करके, क्योंकि जापान में फॉर सम रीजन और अनदर बिटकॉइन इज चीपर, राइट? आई डोंट नो हाउ, आई थिंक येन का जो, क्योंकि वो उसकी जो पैगिंग है वो अगर डॉलर के साथ है तो वो अलग है, जापानीज येन के साथ अलग है, राइट?
तो उसमें हम्म, कुछ डिफरेंस आ जाती है, तो वो येन में लेकर और येन में बिटकॉइन परचेज करके डॉलर्स में बिटकॉइन बेचता था। नाउ ओके। व्हेन आई लुक एट इट, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। आई फील लाइक इट्स ठीक है, ट्रेडिंग है, राइट, एक तरह की ऐसे फॉरेक्स है। होना तो नहीं चाहिए, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज इन माय माइंड वो बिटकॉइन चाहे येन से लो या डॉलर से लो, प्राइस उतना ही पड़ेगा। बिटकॉइन में भी आई एम गोना हैव टू गूगल इट रियल क्विक। अनलेस वो वो वॉल्यूम पे कर रहा हो और उसको पता भी हो कि ऊपर नीचे, मतलब उसको फॉरेक्स का भी आइडिया हो कि कब वो बेच रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज अ फ्रॉड, वो कुछ और होगा। हाँ, बट वो उसको कैसे 17 लाइफ सेंटेंसेस मिली हैं, क्योंकि वो हम्म। जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ था ना, वो भी उसी ने कॉज किया था, उस बंदे ने। ही वॉज अ बिग गाय ओके। जो पिछले साल क्रैश हुआ था। तो वैसे तो उसके क्रैश होते ही रहते हैं तो अब कैसे पता लगेगा कौन सा। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल फैक्टर्स जब बिटकॉइन क्रैश होता है, बट देन यू कैन नेवर टेल कि कौन से फैक्टर ने एक्चुअली क्रैश कराया है। बट देन अगेन ये तो, पर वो पकड़ा कैसे गया? क्योंकि इन माय माइंड जो अभी तक मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे तो ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा पता नहीं, कि ब्लॉकचेन का पॉइंट ही ये है ना कि इट्स इनट्रेसेबल। या आईपी वाईपी से पकड़ा गया होगा, अगर वो इतना आईपी, स्मार्ट है, आईपी जो भी इतना नहीं कुछ होना कर रहा चाहिए। था। हाँ। आई डोंट नो कैसे पकड़ा गया। मे आई बी हैव, कोई, या तो उसकी टीम होगी, किसी ने ऐसे बता दिया होगा हाँ कुछ ये हो सकता है। नहीं तो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन तो इनट्रेसेबल है। बट इट कुड बी, वी आर नॉट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, तो हमें तो पता नहीं कि किस तरह से पकड़ा गया होगा। But so this is what I wanted to discuss, कि how many sophisticated scams are out there. Um, ये मुझे आई बहुत थिंक बढ़िया लगा। आजकल आजकल क्रिप्टो के बहुत सारे स्कैम्स हैं, क्योंकि होता क्या है कि अम, आप सुनते हो जब कि उसने क्रिप्टो में इतने कमा लिए, उसने इतने कमा लिए, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यूबीज कम इनटू द थिंग कि अच्छा इतना आसान है तो हम भी करते हैं। तो हाँ। इस तरह के लोग ऐसे बूढ़े होते होंगे, तो बूढ़े भी नहीं, लाइक इवन मिडिल एज, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लाइक वो आई थिंक दे आर प्राइमरी टारगेट्स। ये तो बहुत सारे, जो बूढ़े लोगों के लिए तो बहुत सारे स्कैम्स है ब्रो। नहीं नहीं, बूढ़े। बूढ़े लोगों के लिए ना वैसे वो है फोन स्कैम्स। आई थिंक ये वाले हम्म। दे आर मोर एम्ड एट अस, हमारी एज के लोग, हम्म। जो ज्यादा जिनको कंप्यूटर, आइडिया नहीं है। हाँ जिनको ज्यादा आईटी बैकग्राउंड नहीं है, जिनका या जिनका हम्म। इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, और उन्होंने बस हम्म। अपने दोस्तों से सुना है कि ओ मैंने बिटकॉइन से इतने बिटकॉइन ले दस लो। हजार 20,000 कमा लिए हम्म। मैंने। तो दे हम्म। लाइक अच्छा वो कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, एंड आई हम्म। थिंक देन दे फॉल फॉर दीज गाइस। हम्म। और भी कितने ऐसे स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम्स की वीडियोस नहीं आती रहती स्कैमर्स की, हाँ, कि वो और स्कैमर्स ब्रो को हैक कर कितने लेते हैं। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने वो कॉइन्स बनाए, फिर एनएफटीज बनाए, एंड दे वर सोल्ड, व्हिच वाज ऑल एसेंशियली इट वाज अ बिट स्कैमी, कि आपने एनएफटीज बनाए और अपने कॉइन्स बनाए व्हिच हैड नो वैल्यू बिहाइंड देम। हम्म। ये जो बॉक्सर है, क्या नाम है इसका, इसने बनाया था एक कॉइन। इस तरह के बहुत से लोगों ने कॉइन्स बनाए व्हिच वर बुलशिट, और हम्म। सॉरी एक्सक्यूज द लैंग्वेज, and there was nothing behind them. हाँ, वो तो चल ही रहा था। आई थिंक ये तो 2017-18 में बहुत ज्यादा था। अभी तो आई Uh, थिंक पीपल आर मच मोर अवेयर अबाउट इट। Bro, I think it's the equivalent of Wolf of Wall Street में penny stocks थे जो, हम्म। right? हाँ 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 हाँ। I तो think this पेनी is, स्टॉक, पेनी स्टॉक का ही तो सारा जब मैंने, आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, तो मैं वो स्टॉक्स ढूंढ, वो कॉइन्स ढूंढता था जिसका मार्केट
कैप हाँ, कम है, और विच आर चीप। या वो विच ऐसे, इज द सेम एज पेनी स्टॉक्स। जिसका ऐसे अगर $100 लगा दिया, बन गया तो 1000 बन गया, नहीं तो $100 गया। या हाँ। अ, तो ऐसे कितने सारे ऐसे थे, और कितने खत्म भी हो गए, कितने ऐसे पंप एंड डंप कॉइन्स होते थे कि ऊपर जाते थे हम्म, और नीचे आ जाते हाँ, जिसने थे टाइम पे इंस्टेंटली। बेच दिया। या वो मेरा एक फ्रेंड है, उसका आई लॉस्ट काउंट ना, उसके इतने ऐसे डॉलर में उसके बने, एकदम से ही, एक अचानक से उसने लगाए और उसके 100, पता नहीं 100 मिलियन ऐसे बन गए। हम्म, और फिर वो डंप कर दी देख रहा है उसने। कि मेरी स्क्रीन पर इतने सारे हैं, बट देयर वाज नो ऑप्शन टू सेल इट। देयर वाज हैं? नो ऑप्शन टू सेल इट। वो इतना फ्रॉड कॉइन था, उसमें पैसे चले गए पर निकले नहीं। वाओ, दैट्स वो सैड। कहते थे, हाथ को आया मुंह ना लगा। उसने लिया कहाँ से था? किसी ऐसी एक्सचेंज से लिया था, फ्रॉड एक्सचेंज से। वहां पर उसने डाले, और डाले भी ऐसे शायद $10-15 ही थे, वो लगाए भी उसने अलग अलग कॉइन्स पे, 10-10, 15-15 डॉलर्स ओके। लगाए। हम्म, और एक बाकी सब में डूब गए, इसमें ऐसे 100 मिलियन बन गए। उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा और आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार इतने सारे बन गए, तो निकाल ले भाई, ये छोड़ तुम, ये सब छोड़। और उसका निकला ही नहीं। उसने मुझसे पूछता रहा कैसे निकालूं इसको, कैसे निकालूं, पर वो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने एक्सेस भी दिया, सब कुछ दिया, पर कोई ऑप्शन नहीं था उसमें कि कैसे निकलेंगे। देन आई रेड सम रिव्यूज अबाउट दैट एक्सचेंज एंड दैट कॉइन, तो दैट वाज स्कैम कॉइन। हाँ, इस तरह के बहुत सारे थे। और आई थिंक हर हर एज में इस तरह का कोई ना कोई रहता है। लाइक हम हम जो पिछली जनरेशन थी उसमें ये स्टॉक्स थे, उससे पिछली जनरेशन में कुछ और होगा। लाइक आई थिंक जहां भी ऐसे थोड़ा सा एक दो लोग क्विक मनी कमा जाए, एक दो तो नहीं, लाइक फैमिली में एक दो या आपकी जानने वालों में से एक दो, दैट्स इनफ फॉर दी स्कैमर्स टू बी लाइक हम भी आपको करके देंगे, लाइक वी विल गेट यू इन दैट एज वेल। क्योंकि अगर अगर अपने सर्कल में हम देखें तो दो तीन ही है मोस्ट टू मोस्ट जिन्होंने बिटकॉइन से, दो भी लाइक पुटिंग इट लिबरली राइट, कि जो मिलियनर्स बन गए आउटराइट। तो द रेस्ट आर जस्ट वही ट्राई ट्राई करते हैं, थोड़ा 1000, 10,000, 20,000 इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। किसी का बन गया, किसी का नहीं बना। हाँ, तो लाइक आई थिंक नाउ इट्स स्टेबल टू द पॉइंट वेयर लाइक स्टॉक्स हुआ, स्टॉक्स में भी ऐसे ही होता था कि होल्ड करके रखो और फिर जब शायद अभी वो पॉइंट आ गया है, या फिर नहीं भी आया हो सकता है। वो मुझे तो लगता है कि आ गया है वो पॉइंट कि अभी। मेच्योरिटी का, हाँ, आई थिंक इट हैज हाँ, मेच्योर्ड। पर वो सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि अभी तक नहीं आया वो पॉइंट, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे लेजिस्लेशंस नहीं आई इनके क्रिप्टोज के ऊपर। अभी रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, ऐसे कोई भी डंप कर देता है और उसकी वैल्यू कितनी गिर जाती है एकदम। Which I think तो stocks इस में it's hard to liquidate your assets that quickly. हम्म। Like अगर एप्पल के आपके पास 100 स्टॉक्स हैं, 100 तो नहीं, 1000 में, तो आप उसको एकदम से लिक्विडेट कर नहीं सकते। हाँ, अगर मैं It's अभी in your मैं contract. किसी कहीं मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, किसी ने पोस्ट डाली थी कि ओके, यू हैव XRP कॉइन्स, एंड those coins go to $100, which is impossible for now, but let's say if it does go to $100, but and you want to sell it, what if nobody buys it? What are you हाँ, gonna do then? तो फिर अ, वो तो आपके किसी काम के नहीं है ना। हाँ, that's true। हम्म कभी सोचा नहीं इस एंगल से। हम्म। So that was a bit thought provoking, but yeah, I think that's how you, that's what you do, and और that कुछ लोग तो it's होते हैं वो हॉलीडे पे जाके स्कैम हो जाते हैं।
मिठाई लेते वक्त। Moving on to the next topic. Turkish, Turkish delight. Bro, I know you warned me about scams and stuff in Turkey. Um, but because I was in a rush and I wanted to buy Turkish delight for you and for family, for your family, for my family, I got I I got a little bit scammed in buying of Turkish delight. पाउंड में कितने कितने का स्कैम हुआ है? मैं 50 पाउंड की मिठाई लेकर आया हूँ सबके लिए। वाह, ब्रो अपने को क्या नाइस। है, खुशियां बांटनी है ब्रो, प्यार बांटना है। प्यार बांटने के लिए मैं 50 पाउंड की मिठाई लेकर आया हूँ। और वो ऊपर से अब मैंने क्या करा है, मैंने वो मेरे को मैं लेने तो गया था ऐसे थोड़ी बहुत एक दो डब्बे कहीं से ले लेने छोटे छोटे ऐसे, जितने कितनी की भी खाई जाती है टर्किश डिलाइट, इतनी वो मीठी होती है। हाँ, तो ओवरली। वो उसने और पता है क्या करते हैं टर्किश लोग ना, वो सॉरी सारे टर्किश लोग नहीं, सेल्स वो पर्सन। क्या, हाँ सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि ब्रदर ब्रदर डोंट वरी आई आई हेल्प यू, ऐसे करके बोलते हैं और थोड़ा सा एक दो लाइनें बोलकर जब आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो देन दे विल बी लाइक ऐसे समझ नहीं आई, ओके ओके नहीं कोई बात समझ नहीं आई। or bro, I help you. Don't worry. I know what you're doing, what you're saying. And वो उसने बोला, ऐसे बोला कि जैसे you'll be paying वो proper ऐसे sales technique, ऐसे you'll be paying 50p a day for a month. What is 50p a day for you? Nothing. और that's बंदा what पूछा, that's मैं what तो क्या करना है, क्या वो 50p का मैं कुछ और कर लूंगा, मिठाई क्यों लेनी है भाई? he goes he goes कि मेरे को it'll be 700 liras for 100 ग्राम। एंड मैंने सोचा ठीक है 100 ग्राम ही देगा फिर। तो वो मेरे साथ सामने सामने ऐसे बड़े बड़े वो इतने बड़े बड़े टर्किश डिलाइट के उठा रहा है। और मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि ये 100 ग्राम कैसे हो गया, क्योंकि इट हैपेंड सो फास्ट। एंड व्हाट इज व्हाट इज 700 liras in pound? 700? 4 pounds, 5 pounds, नो, 3 pounds. 3 पाउंड? ये मेरा लाइक व्हाई इज गूगल नॉट वर्किंग? 20 I'm just पाउंड्स estimating. 700. हम्म, I think you're wrong. आई एम नेवर रॉन्ग। ज्यादा घाटा हो गया। Hmm. नहीं नहीं ठीक है, you're right. You're right. I was calculating it wrong. Um, so उसने बोला ऐसे, बट उसने दिया तो मुझे बहुत सारा है, सिर्फ 2-3 किलो उसने दिया है, जो कि 50 पाउंड के करीब बनता है। जो बट उसने मुझे पचास नो, पचास फिर भी पाउंड का दो दिया। किलो के इतने बनने नहीं चाहिए। आई थिंक लाइक इवन ऑन द प्राइस यू कुड हैव हैगल्ड अ बिट क्या, अ लॉट मोर। हाँ डिड यू टेक द फर्स्ट प्राइज ही सेड, या वो किया बार्गेनिंग थोड़ी कि यू आर माय फ्रेंड, आई एम फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम टर्की, ब्रदर नो ब्रदर? ब्रो, आई डोंट डू बार्गेनिंग, मुझसे ओ होती नहीं हो है। हो ब्रो, वो तो, पहली प्राइस पे तो लेना ही नहीं होता। वो जो हाँ पहली नहीं प्राइस होती है वो इतनी अनरीजनेबली रिडिकुलस होती है कि उसका तो हम्म, सीधा सीधा 50% कर दो बार्गेनिंग पे। ओके। लो आई बॉल। रिमेम्बर दैट, आई रिमेम्बर यू सेइंग दैट, पर मैं भूल गया था। इट हैपेंड सो फास्ट ब्रो एंड आई कांट बिलीव आई गॉट स्कैम्ड Abraham. I I never get scammed, but this is हो that जाता है is ब्रो कभी कभी।
I'm guilty of it. Guilty as charged. हाँ 50 तो बहुत ज्यादा है लाइक फॉर 2-3 kg. I've got 2.5 kgs bro. कोई नहीं, मैं घर पर पहुंचा दूंगा मिठाई, टेंशन नहीं लेनी। भाई सबके लिए लेकर आया है मिठाई। और मुझे जब मुझे उसने ना बोला, मुझे मेल कर दो. जब उसने बोला कि इट्स लाइक दिस एंड दिस लीरस, तो मैंने तभी कैलकुलेट करा, और तभी ऐसे दिमाग में आया कि ये तो 50 पाउंड के करीब बनेगा। तो मैंने कहा, फिर वो मेरे साथ मेरा बेटर हाफ भी था, तो बेटर हाफ भी थी, तो वो बेटर हाफ ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, 50 तो ठीक है, और ले लिया जब, और लेकर वापस आए, बाहर जब निकले शॉप में, तब मुझे लगा यार ये तो ज्यादा हो गया, 50 पाउंड की मिठाई कौन खरीदता है। वो उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि 50 पाउंड माइट बी अ बिट टू मच. कितने बॉक्सेस कितने बन गए? नहीं, बॉक्स तो एक ही बना, इतना बड़ा बॉक्स है, इतना 2.5-3 किलो का है। अम, अच्छा, एक ही बॉक्स में डाल दिया और उसने सब. और उसने इतने इतने से टेस्टर दिए थे, इतने इतने से, वो एक ही खाकर ऐसा लग रहा था कि इट्स टू स्वीट। हाँ. और टू स्वीट, आई डोंट नीड अनदर। तो फिर उसने फिर भी एक दो दे दिए, तीन दे दिए, तो मैं तीनों खा गया, मैं चारों खा गया। फिर जब फिर जब उसने वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े से और निकाले ना, जो रोल होते हैं टर्किश डिलाइट के, उसने बड़े बड़े रोल निकाले, वो काटने लगा उनको, कहता ब्रदर डोंट वरी, आई डू दैट, आई हेल्प यू। और मैं देख रहा हूँ वो इतनी जल्दी जल्दी काम करे जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे मैं खाऊंगा, वो समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी। इतनी जल्दी हुआ। तो उसने रोल कितने डाल के दिए? 4 रोल डालकर दिए। डिफरेंट फ्लेवर्स के? हाँ, वो ओके. लिया तो इसी पर्पज से था कि मतलब ऐसे ऑफिस में देना है, ऐसे फ्रेंड्स को दे देंगे, ऐसे इसी पर्पज से लिया था, नॉट टू हैव इट फॉर योरसेल्फ। पर ये भी ऐसे समझ नहीं आया था। वैसे तो एक बात तो ये है कि आ गया तो आ गया यार, अच्छी बात है, सबको देंगे, बढ़िया, खुशी खुशी बांटेंगे। पर वो इट्स अ गुड वे ऑफ लाइक हैविंग फन, कि अरे वाह ये तो स्कैम हो गया, और ऐसे मजाक उड़ाने के लिए अच्छा है। बट ऐसा भी कोई स्कैम नहीं हुआ, ठीक है यार, सबके लिए लाए थे, सब बढ़िया। But I think Phil, you didn't get Turkish delight. You got what you're describing is lokum rolls. टर्किश डिलाइट उसने बोला। वो कुछ भी बोल देगा. टर्किश डिलाइट ना वो जेली जेली सा होता है एक वही है. वो स्क्वायर. रोल के अंदर जो रोल है, रोल ऊपर से ऐसे कुछ डिफरेंट फ्लेवर हाँ है, पर वो रोल अंदर इज जेली है। अलग. रोल इज लोकुम. वो ओके, वैसे तो अंदर अलग जेली टाइप्स है। होते हैं. अलग अलग टाइप्स होते हैं. ये वाले मुझे पसंद हाँ। है बेसिकली. जो मैंने उस दिन फोन पे बोला था ना कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. दीज वंस आई लाइक. ओके, दीज आर, उसने बोल कर यही बोला था कि टर्किश डिलाइट है, और हाँ हाँ दो इट इज चार अ बार। टाइप ऑफ टर्किश डिलाइट. हाँ. ओके। या बट वेल फिर डन तो यू वो गॉट. और बहुत कुछ वो ऐसे बेच रहा था, फिर वो शहद की बोतल देने लगा हमें, कहता कि ये तो ओरिजिनल, माय माय फ्रेंड, स्ट्रेट दिस इज फ्रॉम माय ओरिजिनल विलेज. अभी अभी वाटर। मैं मिल्क करके लाया अपनी बीस को. तो वो बॉटल देखी, फिर उसने उसका प्राइस बताया, मैंने कहा नहीं भाई, ये हम बाद में लेके जाएंगे, पहले पहले यही दे दे तो, ये टर्की तो अगली बार लेकर जाऊंगा। वो और भी कुछ कुछ दिखाने लगा, तो मैंने कहा नहीं ब्रो, तो मैंने कहा ओके, ओके ब्रो, यू वो समझ यू गया बिन यार हेल्प। 50. हाँ, ये कहीं 50 पॉइंट कि से भी ना जाऊं मैं. हाँ, कि ज्यादा हो इसको गया, अगर कहता होश आ इट इज गया ओनली। एकदम से, इसने अगर कहीं चेक कर ली करेंसी. उसने देखा, फिर कहता इट्स ओनली माय जॉब टू डू सो, सो आई एम अपसेलिंग, अदरवाइज। और जब अच्छा, जब इंग्लिश बोल रहा था तो उसको सारी समझ आ रही थी, वो इंग्लिश में अपसेलिंग भी बोल रहा था। आता था उसे.
हाँ वही तो अपसेल ही तो कर रहा था ये, और क्या कर रहा नहीं था नहीं, जो ही न्यू देख ही द नहीं रहे वर्ड हो? अपसेलिंग। नो नो, अच्छा, मुझे लगा अपसेलिंग नो, वर्ड भी है। he said कि it's only my job to हाँ, to मेक अ tell सेल। you about these things. हम्म, अच्छा। तो मेरे को फिर बाद में ख्याल आया कि जब वो इंग्लिश में हमें समझा रहा था तब तो उसे अच्छी तरह से इंग्लिश आ रही थी, और जब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब उसको समझ नहीं जब आती हमने हैगल करना था तब नहीं ना, वही समझ ही नहीं आया। हो जाता है कभी कभी अपना No, like that's, I think that's a part of like your experience of going to Turkey. अगर बंदा एक बार स्कैम ना हो तो मजा भी नहीं आता, कोई स्टोरी नहीं होती। हम्म लाइक हम्म वो एक टूरिस्ट जब 3-4 दफा डसा जाता है उसके बाद इट बिकम्स अनोइंग, बिफोर दैट इट्स एंटरटेनिंग। हम्म जैसे मेरा हम्म जो टैक्सी वाला था, which I was telling you, कि वो ऐसे स्लाइट ऑफ हैंड से एकदम से वो नोट बदल देते हैं। Bro, that's a skill, that's art, right? Like you gotta respect the man for his art. हम्म हम्म तो मतलब like that's his hustle. वो, हाँ, जब चौथी पांचवी बार होने लगता है ना तब तंग आ जाता है बंदा कि यार लाइक इनफ, लाइक स्कैम हो के भी तंग आ जाता है। बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स इट्स अ बिट लाइक यू कैन, इट्स एंटरटेनिंग, हम्म, हो जाता है कभी कभी। पार्ट एंड पार्सल ऑफ विजिटिंग टर्की। Yeah, okay. अब बंद करें क्या, ये 1 घंटा और 1 मिनट हो गया। Okay, bro, that वैसे भी सुनना तो is किसी ने है नहीं। वही अपने चार पांच लोग, आठ लोग हैं। ओह सॉरी, लास्ट टाइम इट वाज 19 व्यूज। वो हम ही थे, वो अलग अलग। बार बार हम एक्साइटमेंट में आके फिर देखते थे वीडियो। चेक करते हो कितने हो कितने व्यूज आए, कितने गए। व्यूज आए। ओके। Oh, bro, tomorrow's India versus Pakistan as well. We could do a special episode. Oh, If tomorrow we're not out, let's see. I am out tomorrow, and so Yeah, is you, I think. same as here, but like if anything changes, But did you mark the date? Yeah. yeah, bro. Thank you for informing me because I have no knowledge of cricket. I have no knowledge of cricket dates. आज भी Bro, मैंने when I'm मैच नहीं here, देखा। आज भी मैंने मैच नहीं देखा, कल भी नहीं देखा मैंने। आज बांग्लादेश का था, वो भी नहीं देखा मैंने न्यूजीलैंड के साथ। और कल भी bro, था when I'm बहुत। here, have no fear. मैं याद दिलाऊंगा। कल भी याद Thank you, दिलाऊंगा। bro. Like you're so like really connected with this cricket world, bro. ब्रो, मुझे नहीं पता था कि आज भी मैच था। वर्ल्ड कप है ना ब्रो, इस एवरीडे बार मैच। मैंने वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं देखा। ओ मैं हो हाइलाइट्स ये ऐसे देखता हूँ गूगल पे वर्ल्ड कप, और देखता हूँ कि इंडिया जीत गया, ओके चलो अच्छा हो गया। फिर ठीक है। अपने को क्या है, मैं जब ब्रो मैंने देखा है कि जब मैं देखता हूँ ना तो इंडिया हार जाता है, तो इसलिए मैं देखता देखना ही नहीं चाहिए, you're a curse। नहीं। Bro, do you remember जब when you were supporting Pakistan, हाँ, Pakistan was always losing, and yeah। when you started supporting India, तो India भी lose करने लग गया। No, last time India won, even the वो time तो before bro, that। you had mixed feelings about it, right? You were like कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की टीम अच्छी होगी है, एंड तब फिर पाकिस्तान फिर हार गया। हाँ, अच्छा, बट आई वाज सपोर्टिंग इंडिया। वो ब्रो तो वो अंदर से, वो तो मुझे अंदर डाउट से तो लग रहा था। पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे ना, वो तो मुझे बाहर था से कि तो लाइक नहीं। इनके अच्छे बॉलर हैं शाहीन और नसीम, लाइक they're gonna make it hard, they might win। वो उसका आफरीदी का नाम क्या है उसका? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी। वो बॉलिंग तो बढ़िया करता है, बैटिंग बेचारा नहीं ही इज करता। आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ एज वेल। ब्रो all जब इंडिया all के cards are सामने, stacked against Pakistan this time। इंडिया के सामने अच्छे अच्छे आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं ब्रो। हो जाता है कभी कभी। वो मुझे नहीं पता क्या इन फॉर्म और आउट फॉर्म होता है, बट ठीक है। अपने को बस बात मारनी होती है, हम बात मार लेते हैं।
अपने को बस हाइलाइट्स देखने हैं कल। हाइलाइट्स भी मैं वो देखता हूँ जब when you tell me कि ये तो हाइलाइट्स देखने वाले हैं। हाँ, वो मैं फोन कर देता हूँ ना कि ब्रो मैच बहुत अच्छा चल रहा है, देन यू पुट इट ऑन के अच्छा लिंक भेजो ना। आई एम लाइक ब्रो, आई डोंट हैव अ लिंक, आई एम अ लीगल गाय। आई एम अ लीगल ब्रो, ब्रो आई मैं भी पेड फॉर दिस। लीगली लिंक चेक करता हूँ ऐसे थोड़ी। हाँ, ये तो है। लीगली लाइक इट इज ऑल। हो जाता है ब्रो। ओके ब्रो, since we've finished everything on the agenda today, अपने को आउटरो भी चाहिए एक। क्या चाहिए? आउटरो, इंट्रो आउटरो टू फिनिश द वीडियो। Out. Okay. People, 19 people, school bus watching. Please subscribe. We've got 2 subscribers at the प्लीज, moment. वी बेग ऑफ यू। Yeah. Like, subscribe, and share. Please. ब्रो ऐसे नहीं, लाइक हम अभी गरीब लोग हैं, हमें ऐसे ऐसे करके लाइक। Right. Remember, I can't see you. हमें अभी आता नहीं है कुछ करना, but I can see. मेरी प्रार्थना है कि जो भी मेरे भाई और सब देख रहे हैं, बहने। अंकल आंटी, अवेश की बहनें और मैं, आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करें कि मैं ओके। हो जाता है कभी कभी। अवेश की बहनें तो मेरी भी बहनें होंगी ना। प्लीज यार सब्सक्राइब गुड करें। सेव, गुड सेव। And let's see you in the next video. See you next time, Thanks everyone. guys. Right. Bye bye. Bye.